اپنے کزن کی شادی پر مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ وہ حقیقت میں واقعی بہت خوبصورت تھا۔ کچھ ہی دن بعد ہماری بات پکی ہو گئی اور ہم دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ اور پھر شادی کی رات جب دلہا نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو یہ دیکھ کر میرے اوسان ہی خطا ہو گئے، کیونکہ وہاں پر تو 70 سالہ میں اس وقت صرف 17 برس کی تھی، ماں باپ اور بھائی کی پیاری، کبھی غم کا منہ نہ دیکھا تھا، یہ جانتی بھی نہ تھی کہ وہ دکھ جو دل کو اپنی مٹھی میں لے کر توڑ ڈالتا ہے کیسا ہوتا ہے۔ سارا دن آنگن میں گھومتی، کبھی سہیلیوں کے ساتھ اپنے باغ میں چلی جاتی۔ ان دنوں مجھے سجنے سنورنے اور شادی کی تقریبات میں جانے کا بہت شوق تھا، شاید اس لیے کہ دل نے مجھے سرخ جوڑے میں بڑی خوبصورت لگتی تھی۔ مجھے وہ شرماتی، زیوروں میں دمکتی اور جھلمل کرتی بہت پیاری لگتی تھی۔ میں بھی ان سب کی طرح دلہن بن جانے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ ان دنوں میں 18 برس کی تھی جب میرے چچا زاد بہن کی شادی ہو رہی تھی۔ میں نے اس تقریب میں شرکت کے لیے خوب تیاری کی تھی، اپنے جوڑے کو اتنے گوٹے کنارے سے سجایا جیسے عروسی لیوڑا دلہن نے نہیں میں نے ہی پہنا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ میرا دوپٹہ خوب کامدار اور کڑھائی والا تھا اور اس پر چھوٹے چھوٹے ستارے لگے ہوئے تھے، اور میں نے امی کے ساتھ بازار جا کر میچنگ جوڑا اور جوتا لیا۔ جب نور کی شادی کے روز اس کو پہنا تو وہ مجھے دوپٹہ بہت بھاری لگ رہا تھا۔ دلہن کی ہم عمر لڑکیاں تو ہر صورت دلہن کا قرب چاہتی ہیں اور اس کے پہلو سے لگ کر بیٹھتی ہیں تاکہ وہ نمایاں لگے۔ میں بھی نور کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتی تھی، وہ میری کزن ہی نہیں دوست بھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں جہاں دلہن کے ساتھ بیٹھی تھی کچھ عورتوں نے کہا، لڑکیوں بھیڑ بھاڑ چھوڑو، دلہن کا نکاح پڑھوانے اور دستخط لینے کچھ بزرگ اندر آ رہے ہیں۔ مگر میں وہاں سے نہ اٹھی، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو کوئی اور لڑکی یہاں آ کر اس کے ساتھ نہ بیٹھ جائے۔ پھر خاندان کے کچھ مرد اندر آ گئے اور دلہن کا نکاح پڑھوانے لگے۔ ان میں ایک وہ بھی تھا جس کی نظریں میرے ہی چہرے پر تھی، اور مجھے اس بات کا نہیں معلوم تھا کہ کون کون لوگ آئے ہیں۔ میں تو بس سر جھکائے دلہن کے پاس بیٹھی تھی اور نور کو دیکھتی رہی اور مسکراتی رہی کہ کیسے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور ہاں کرتے ہوئے کتنا شرما رہی تھی۔ شادی میں دو خوبصورت نیلی آنکھیں میرا تعاقب کرتی رہیں۔ میری ایک کزن نے بتایا کہ اس کا نام شاویز خان ہے۔ وہ بہت ہی خوبصورت، لمبا قد، سرخ اور سفید رنگت اور نیلی آنکھوں والا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی شہزادہ زمین پر اتر آیا ہے۔ میں بھی جیسے اس میں کھو چکی تھی۔ شادی ختم ہوتے ہی وہ لوگ رشتہ لے کر میرے بابا جان کے پاس آئے۔ وہ لڑکا ہمارے علاقے کے سردار کا بھتیجا تھا اور ان سب کو علاقے کے ریت و رواج کے مطابق شادی میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا۔ بابا جان نے اماں کو کہا کہ سردار کے گھر کا رشتہ ہے۔ اماں کو بھی وہ پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا۔ کہنے لگی کہ خدا نظر بد سے بچائے، کس ماں نے ایسے لال کو پیدا کیا کہ آنکھ بھر کر نہیں دیکھا جاتا۔ ہم تو خوش قسمت ہیں، خاندان بھر میں دھوم مچ جائے گی ہمارے داماد کے حسن کی، اور ہماری بیٹی بھی تو اپنی مثال آپ ہے، یہ تو چاند اور سورج کی جوڑی رہے گی۔ بس گل شہر کے بابا جلدی سے یہ رشتہ قبول کر لو۔ بابا جان بھی بہت خوش دکھائی دے رہے تھے، مگر بابا جان کچھ پریشان بھی تھے کہ سردار ہماری حیثیت سے بلند مرتبہ ہے اور وہ لوگ دوبارہ ہمارے گھر ابا سے بات کرنے آئے تھے۔ میں نے بھی اس کو دروازے کی اوٹ سے ایک بار پھر سے جھانک کر دیکھا، اور پھر مٹھائی سب کے منہ میٹھے کروائے گئے اور مبارکباد دی گئی، گویا بات پکی ہو چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے صندوق سے وہ ستاروں بھرا دوپٹہ نکال لیا اور دیر تک آئینے کے سامنے بیٹھ کر اس دوپٹے کو اوڑے رکھا رہا۔ چند دن بعد میری ایک سہیلی نے آ کر مجھے بتایا کہ شاویز خان نے تمہارے لیے کچھ بھجوایا ہے، اور ان کی نوکرانی ہمارے گھر آئی تھی اور وہ تحفہ دے کر چلی گئی ہے کہ یہ گل شہر کو دے دینا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جب اس تحفے کو کھولا تو اندر سے بہت ہی خوبصورت جھمکوں کی جوڑی تھی، اور ساتھ میں ایک رکا بھی تھا کہ پلیز ایک بار مجھ سے ملو، میں تمہیں پھر سے دیکھنا چاہتا ہوں، چاہے صرف 2 منٹ کو ملنے آ جاؤ۔ آپ شہر بانوں کے گھر آ جانا جو آپ کی دوست ہے اور میری بہن کی بھی، اور میں آپا کو لینے کے بہانے 2 گھڑی ان کے باغ میں آپ سے بات کر لوں گا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اپنے گھر کے ماحول کو بھی جانتی تھی کہ اپنے علاقے کے رسم و رواج کو بھی۔ اگر میرے والد یا بھائی کو خبر ہو جاتی تو میرا کیا حال ہوتا۔ میں نے منع کر دیا۔ دوسری طرف پھر سے اصرار ہونے لگا۔ شہر بانو نے بھی یقین دلایا کہ
किसी को खबर नहीं होगी। मुझ पर भरोसा रखो। और मैं भी दिल के हाथों मजबूर होकर एक दिन अम्मा से इजाज़त लेकर शहर वालों के घर चली गई। और जब वहां से बाग में गई तो उसे मैंने पहले से ही अपना मुंतजिर पाया। ब्लैक सूट में वो बहुत ही दिलकश लग रहा था। उसने मुझे बताया कि वो शादी पे मुझे देखने के बाद अपना दिल हार बैठा था और उसके माँ बाप इस रिश्ते पर मान ही नहीं रहे थे। वो उसकी शादी उसकी मामूजात से करवाना चाहते थे, मगर किस कदर मुश्किल से उसने अपने घर वालों को इस रिश्ते के लिए मनाया है। और अगर मैं उसे ना मिलती तो वो कभी किसी और से शादी ना करता। वो मेरे लिए फूलों के गजरे लाया था, फिर उसने अपने हाथों से उन्हें मेरी कलाइयों में पहना दिया और फिर मैं घर लौट आई। उसने जाते हुए कहा कि अब आपसे शादी के रोज़ ही मुलाकात होगी। और मैं मुस्कुरा दी थी और वो मुस्कुराते हुए और भी खूबसूरत लगता था। बस 5 मिनट की ये मुलाकात मेरे लिए हसीन याद बन गई। और यूं 2 माह बाद मेरी शादी का दिन आ गया। हर कोई मेरी तारीफें करता न थक रहा था कि इतनी हसीन लग रही हो, आज तो दुल्हा साहब दिल थाम कर ही बैठेंगे। और मैं ये सब बातें सुनकर दिल में फूले नहीं समा रही थी। और फिर निकाह हो गया, छुआरे बट गए और मुझे दुल्हा के पहलू में लाकर माँ बाप ने विदा कर दिया। अब्बा दुआ करते रहे और अम्मा रो रही थी। तमाम सखियां हसरत से देख रही थी और मैं रुखसत होकर प्रिया घर जा रही थी। 12 बजे शब हम घर पहुंचे। मुझे सजी हुई सेज पर बिठा दिया गया और मैं घूंघट किए बैठी थी। मेरे दूल्हा अंदर आ चुके थे और मेरा दिल खुशी से होले होले धड़क रहा था। तस्वीर में शाहवेज खान का खूबसूरत चेहरा था। उन्होंने कांपते हाथों से मेरा घूंघट उठाया। मैंने भी ये दुश्वार मरहला तय किया। नजर उठाकर उनकी जानिब देखा, बस यही गजब हो गया। मैं तो उनकी सूरत देखते ही बेहोश होकर गिर गई। चीख मेरे हलक में अटक कर ही दम तोड़ गई। ये क्या था? कयामत ही टूट पड़ी। सुहाग रात थी कि कोई भयानक ख्वाब था? ये वो नीली आंखों वाला सजीला जवान तो ना था? ये एक 70 साल का सफेद बगले जैसे बालों वाला बूढ़ा था? मेरी नजरों में ऐसा अंधेरा छाया कि फिर मुझे खबर ही ना रही कब सुबह हुई। जिस रोज निकाह था, दूल्हा का चेहरा नहीं, सारा वजूद सेहरे की लड़ियों से ढका हुआ था। और मैं भी चेहरे पर घूंघट देखा था, इसलिए मैं दूल्हे के चेहरे को ना देख पाई। वो सुनहरी रात अंधेरी निकली। उसके बाद के सवेरे भी सारे अंधेरे हो गए। फिर कभी मेरी जिंदगी में कोई सूरज भरा सवेरा न आया। मेरे सरताज ने मुझे खुश रखने को जेवरात के ढेर मेरे कदमों में डाल दिए और माफ़ी मांगी। अपनी गुल होती हस्ती का वास्ता दिया कि अब मैं उसकी मुझसे मोहब्बत की लाज रख लूं। उसने बताया कि जब मैंने तुम्हें तुम्हारे चचाजाद नूर के निकाह के वक्त बतौर गवाह आया था, तो तुम दुल्हन के पहलू में बैठी कोई परियों की तो शहजादी लग रही थी और सितारों भरा दुपट्टा ओढ़े तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उस वक्त तुम मुझे बहुत प्यारी लगी और मुझे महसूस हुआ कि अगर तुम मुझको हासिल न हो सकी तो मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तुम्हारी फरिश्तों जैसी मासूम सूरत ने मेरे दिल का सुकून लूट लिया था और तुम्हारा रिश्ता हासिल करना मेरे लिए मुमकिन था, क्योंकि मैं इलाके का सरदार था। मगर उम्र के फ़र्क की वजह से मुझे ये ज़ेब न देता था कि मैं तुम्हारा हाथ अपने रिश्ते के लिए मांगूं। लेकिन फिर खुदा ने खुद ही इसकी सबील बना दी और तुम्हारे मजबूर बाप की मजबूरी काम आई। ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोले, देखो, दिल की दुनिया बड़ी निराली होती है। इस दिल पर तो किसी का इख्तियार नहीं और मोहब्बत किसी शय की मरहूने मिन्नत नहीं होती। मेरा कसूर सिर्फ मोहब्बत है, इसलिए मुझको माफ़ कर दो। बूढ़े सरताज ने मेरे पैर पकड़ लिए। मेरे दादा की उम्र का ये शख्स मेरे सामने बैठा मुझसे माफ़ी तलब कर रहा था। हालात और ज़िंदगी से समझौता कर लेने को अब मजबूरी समझा। मेरी शादी के बाद वो बमुश्किल 3 साल जी सके और मैं 22 बरस की दुल्हन शादी के तीसरे बरस ही बेवा हो गई। इद्दत के बाद मैंने मेके जाना चाहा। अब्बा भी यही चाहते थे, मगर जिस कौम से हम ताल्लुक़ रखते थे, काश कि मैं उसका नाम भी तहरीर कर सकती। इस कौम में ना तो तलाक मुमकिन है और ना ही बेवा वापस मेके जा सकती है, क्योंकि एक बार ब्याह हो जाए तो फिर मेके की नहीं, ससुराल की इज्जत ही होती है। और मेरे शोहर के जवान बेटों ने बंदूकें तान ली, कह दिया कि अब तुम हमारी माँ हो, हमारी और हमारे बाप की इज्जत हो। दूसरी शादी का तस्वुर दिल से निकाल दो। जिस रोज घर से बाहर कदम रखोगी, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। 2 साल बाद अब्बा का इंतकाल हो गया। मैका में भी माँ बाप का ही आसरा होता है। माँ भी चल बसी तो भाई और भाभी के प्यार में गुम हो गए और मुझे भूल बैठे। जब मैका ही बाकी ना रहा तो ससुराल के पिंजरे से कैसे निकलती।
अब मैं इस रात से पर्दा उठाती हूँ कि कैसे मेरी शादी कबीले के उमर रसीद सरदार से हो गई, जबकि रिश्ता उसके रिश्तेदार लेना चाहते थे। जब शाहवेज खान का रिश्ता आया था तो शादी की तारीख रखने से पहले कबायली रिवायात के मुताबिक वालिद साहब सरदार साहब के पास गए और बताया कि आपके ही भतीजे का रिश्ता था, इसलिए रिश्ता करने से पहले मैं आपसे नहीं पूछा, मगर मैं शादी रखने के लिए आपकी इजाज़त लेने आया हूँ। उसके जवाब में सरदार ने पूछा, गोशा खान पहले ये बताओ कि तुम्हारे लड़के से मुतालिक कत्ल का जो तनाज़ा असगर खान के साथ चल रहा है, उसमें मसलहत की कोशिश का क्या बना? सरदार खाना, मैंने तो बहुत कोशिश की और रकम की भी पेशकश की है, लेकिन वो राजीनामे पर मुतफिक ही नहीं। कहते हैं कि खून का बदला खून से ही लेंगे। तुम्हारे लड़के ने हमारे बेटे को फायर करके हलाक किया था, सो हम भी बदले में कातिल की सजाए मौत चाहते हैं। मेरे बड़े भाई का ये केस सरदार के सामने पेश हुआ, जिसे जवानों की जमीनों की लड़ाई की वजह से एक कत्ल हो गया था और अब फैसला होना बाकी था। मेरे वालिद ने कहा कि सरदार, क्या आप फरीक मुखालफत को राजीनामा पर आमादा कर सकते हैं? वालिद ने मुद्दा बयान कर दिया, ये बहुत मुश्किल है गोशा खान। ऐसे मामले में जबर से नहीं, तदबीर से काम लिया जाता है। ताहम एक सूरत में तुम्हारा मसला हल हो सकता है कि तुम अपनी लड़की मेरे निकाह में दे दो, तो मैं ये तुम्हारा मसला मुकम्मल तौर पर हल करवा दूंगा, वरना फिर तुम्हारे बेटे को मौत से कोई नहीं बचा सकता। वो कैसे मेरे सरदार? ये तो तुम मुझ पे छोड़ दो। बेटे की जिंदगी बचाना चाहते हो तो मेरी बात मान लो, वरना कबीले के कानून को तुम जानते हो। मैं कानून तब्दील करने के मामले में बहुत बेबस हूँ। हाँ, अगर मैंने मसलिहत पर मकतूल के बाप से बात कर ली तो शायद वो लिहाज की वजह से मेरे कहने को रद्द न करें। अगरचे सरदार की हैसियत से मेरी समाजत बेहद महाल अमर है, मगर मैं ऐसा करूँगा ताकि तुम्हारे बेटे की गर्दन लेने की बजाय वो तावान कबूल कर ले, और ये मुंह मांगा तावान उनकी तरफ से इतनी ज़्यादा रकम भी हो सकती है जिसको तुम अदा न कर सको और फिर अपना इकलौते बेटे को ना बचा सको। ये रकम भी मुझको ही अदा करनी पड़ेगी, लेकिन याद रहे इस मामले की किसी को कानो कान खबर ना हो। वालिद साहब परेशान हाल घर लौटे कि अब क्या करें। वो बेबस हो चुके थे। एक तरफ अकलौते बेटे की जान का सवाल था और दूसरी तरफ बेटी की किस्मत। सच कहते हैं कि बुढ़ापे का इश्क बहुत खतरनाक होता है, मगर ये कमबख्त इश्क भी एक बहुत मौजूर शय है। ये आदमी को तबाह कर सकता है, आदमी इसको ज़ेर नहीं कर सकता। ये मामला था जो वालिद साहब ने अपने और सरदार के बीच रखा। तावान की रकम सरदार ने अदा करके मकतूल के वर्षा को जान बख्शी पर आमादा कर लिया। अब्बा ने ये सौदा अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए किया। यहाँ बहनें और बेटियां अपने भाइयों और बाप की खातिर बदले में ही तो कुर्बान हो जाती हैं, और सरदार साहब ने निकाह सादगी से किया। सिर्फ कबीले के चंद लोग और मुअज़्ज़िज़ीन को शिरकत की दावत दी थी, और शाहवेज खान मेरी शादी के बाद बैरून मुल्क चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। आज बेवा हुए मुझे 40 बरस बीत गए हैं। लगता है जिंदगी सुनसान जंगल है, जहाँ हर वक्त तन्हाई के सांप साए साए करते रहते हैं। वो पुराने लोग जिन्होंने आज तक अपनाया नहीं, उन्हीं को अपना कहना पड़ता है। जब खुद से बड़ी उम्र के पोते और नवासे मुझे दादी माँ कहते हैं तो आंसू दिल में गिरने लगते हैं। पता नहीं खुदा ने इंसान को जिंदगी तो एक बार दी है, मगर मुझे तो जिंदगी के नाम पर उम्र कैद और हब्से दवाम की सजा हुई थी, और जब तक रिहाई का परवाना ना लाएगी तो कैद बंद की सबूतें खत्म हो जाएंगी। मगर खुदा ही जाने कि ये मेहरबान मौत कब आएगी। काले पहाड़ों में पैदा होने वाली लड़कियों के लिए ये कोई ताज्जुब भरा वाकया नहीं। हम संगलाख चट्टानों के बासी कि जिनकी दुनिया सबसे अलग होती है। यहाँ औरतें भेड़ बकरियों के जैसी मलकियत होती हैं, मालिक की मर्जी जिसके साथ ही हाँक दे। हमको तो उफ करने की इजाज़त भी नहीं। सदियों के कानून हैं और आज तक नहीं बदले। आज भी यहाँ रहने वालों के दिल पत्थर जैसे सख्त और स्याह है। ऐ काश कि मैं अपने इलाके का नाम ही लिख सकती। मुझे उम्मीद है कि मेरे सामीन को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।